الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور صلات کے بعد رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. رجب کے مہینے میں کچھ کام ہم مسلمان ایسے کرتے ہیں جو ہمارے لیے لائق نہیں ہیں. پہلی بات، رجب کو المرجب کہتے ہیں. رجب المرجب. یہ لفظ المرجب کا اضافہ کرنا رجب کے لفظ میں یہ غیر شرعی غیر اسلامی ہے. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تقویم اور اسلامی جنتری کے ناموں کو خود پسند کیا ہے. یہ امت کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ نام ہیں. زمانہ قدیمہ میں اسلام سے پہلے مضر قبیلہ رجب کے مہینے کو بہت عظمت والا گردانتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب رجب کا لفظ لیا تو کہا رجب من بنی مضر، بنو مضر والا رجب، نشانی کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے بعد شعبان ہے اور شعبان کے بعد رمضان ہے. لیکن رجب کو المرجب کہنا یہ شرعی طور پہ مناسب نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. رجب کے مہینے میں ایک خیرخواہی کا کام کیا جاتا ہے جس کو رجبیہ کہتے ہیں. رجبیہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نام پر
एक जानवर ज़बह करते थे, जिसको आप समझ लीजिए आसान लफ्जों में कि फी सबीलिल्लाह जानवर को ज़बह करते थे, अल्लाह के नाम पे ज़बह करते थे और उसे अल्लाह के नाम पे खिला दिया करते थे। इसको लोगों ने रजबिया के नाम से ताबीर किया। इसी तरह रजब के महीने में एक आतीरा किया करते थे, जिसे अपने माबूदीन के नाम पे वक़फ़ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया आतीरा और रजबिया दोनों के बारे में। आपने आतीरा से तो साफ मना कर दिया कि गैरुल्लाह के नाम पे किया जाने वाला जानवर है, लिहाजा इसका तो इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जहां तक रजबिया की नौयत है, अगर रजब के अंदर अल्लाह के नाम पे कोई जानवर कभी भी ज़बह कर लिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं, लिहाजा उसे जायज और मुबाह करार दिया गया। चूंकि रजबिया के लिए कोई तारीख का तयन तो था नहीं, कभी भी कर लिया करते थे, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी तारीख का तयन किए इसमें रुख्सत दे दी कि जो चाहे रजबिया को कर सकता है। इसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वफात भी रजब में हुई, तो बहुत से हजरात ने उसे बहुत तरीके से घुमाया और उनकी शहादत को, उनकी वफात को उनकी हलाकत के साथ ताबीर करते हुए इस दिन मुख्तलिफ किस्म के एहतमामात शुरू कर दिए, जो 22 तारीख को किए जाते थे। शरई एतबार से उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बयान करदा फरामीन है वो हम सब के लिए काफी और शाफी है। चाहे नाम का टाइटल कोई मुसलमान अपने ऊपर कुछ भी लगा ले, उसके लिए वही हुज्जत उत्ताम है जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से साबित है। इसीलिए फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुम्हें अल्लाह के हबीब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से दे दे तुम उसे कबूल कर लो, और जिस चीज से तुम्हें मना कर दें उससे रुक जाओ। तो बहुत से मुसलमान इस दिन मट्टी के प्यालों में बहुत सी चीजें तकसीम करते हैं, कुछ मिठास बनाते हैं और वजह वजह की मेवेजात को तकसीम करते हैं। चूंकि शरिया में इसका जिक्र नहीं है और शरीयत में ये साबित नहीं है, लिहाजा मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। खुआ नाम कुछ भी रख लिया जाए, इससे बचने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है कातिबुल वही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक बहुत बड़ा एजाज ये था कि कुरान करीम उतारने के लिए अल्लाह ने उस नबी को मुंतखब किया कि जो लोगों के दरमियान रहता हो, लोगों की जबान बोलता हो, उसके मामलात लोगों जैसे हो, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत कुरान के खातिर इतनी सिक्योरिटी प्लान की कि उस नबी को मुंतखब किया कि उसे लिखना पढ़ना ना आता। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मुझे लिखना पढ़ना आता तो कहा जाता कि इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से बना लिया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया और खुद याद करवाया, खुद पढ़वाया, खुद लिखवाया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले बिल्कुल नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस कुरान करीम में अपने हजरात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बड़ी फजीलतें बयान की हैं, तो हम उन्हीं फजीलतों में से कुछ एक को सुने ताकि हमें पता चले कि हजरात सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान की क्या शान है और शरीयत ने इसको किस तरह मुकर्रर किया है और उससे हमारा ताल्लुक किस तरह जुड़ता है। सूरह हुजरात आयत नंबर 7 अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि जिनको तुमने अर्जा समझ लिया है ना, कि तुम उनका जिक्र भी नहीं समझते और उनकी कुर्बानियों को भी नहीं गर्दानते, वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, जानो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल हैं। लौ युतीकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम, अगर वो अक्सर कामों में तुम लोगों की बातों को मानना शुरू कर दें तो तुम लोग क्या करोगे? तो तुम लोग ये करोगे कि तुम उनको तकलीफ देना शुरू कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह हुक्म उतार रहा है कि आप अपने लोगों को बता दीजिए कि जान लीजिए कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल है। अगर अक्सर कामों में तुम्हारी कहीं भी बातों को मानना शुरू कर दें तो तुम तो ईजा में पड़ जाओगे, तकलीफों में पड़ जाओगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें एक चीज दी है, तुम उसे फॉलो अप करो। क्या चीज दी है?
वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने पसंद ये किया है तुम्हारे लिए कि तुम मोमिन बन जाओ। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और अल्लाह ने उस ईमान को तुम्हारे दिलों में राइज फरमा दिया है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र, इस बात को नापसंद किया है कि तुम्हारे अंदर कुफ्रिया नजरिया पैदा हो, वल फुसूक वल इस्यान, और फुसूक पैदा हो और इस्यान पैदा हो। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपनी सुनन में इरशाद फरमाते हैं कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह से सवाल किया गया कि एक तबका है जो तकदीर में इनकार करता है और तकदीर के बारे में अपने नजरियात अलग रखता है, उनसे अगर बातचीत की जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ ऐसे किसी शख्स के करीब होने से जो तकदीर का भी इनकार करता है। फरमाया कि क्या उनसे बातचीत नहीं करी जाए। फरमाया, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों से गुफ्तगू करने में पहल कभी नहीं करो और उनसे दूर रहो, इसलिए कि वो खुद भी गुमराह हैं और तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। तुम उनसे बातचीत से ही दूर करो और अपने आप को बचा के रखो, कुरान और सुन्नत पे मजबूती से अमल पैरा रहो, फजूल में जिद बहस और मनाजरों से अपने आप को बचाओ। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह जो इमाम अहलुस सुन्नह हैं, उनका अमल यह है कि वो खामखाई की बातों में उलझने के बजाय अपने आप को बचाते थे और अपने अमल को पुख्ता किया करते थे और यही फरमाते थे, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। इंसान बस औकात अपनी लाइल्मी में वो बातें करता है और शैतान के इस तरह चुंगल में फंसता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब कुफर, फुसूक और इस्यान में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा जब अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए नापसंद किया है तो तुम इससे अपने आप को बचाओ। क्यों? इसलिए कि सहाबा वो हैं उलाइका हुमुर राशिदून, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि ये हिदायत याफ्ता हैं। फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, इन पर अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह के एहसान भी है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह की शान ये है कि वो सब बातों को जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। इमाम अब्दुर रहमान अस्सादी तफसीर उस-सादी में लिखते हैं कि ये वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को रचा पचा दिया और ये वो लोग जिनके साथ अल्लाह ने ईमान को मजबूत कर दिया, वो सिरात मुस्तकीम पे लगने वाले लोग हैं जिन्हें आप सहाबी रसूल के नाम से जानते हैं। उम्मत में शुरू से उनसे बुग़्ज़ रखा गया है, शुरू दिन से उनके खिलाफ नफरतें रखी गई हैं और किसी किसी तरीके से उन पर इताब किया गया है। उम्मत मोहम्मदी के लिए हुक्म यह है कि किसी भी सहाबी के बारे में चाहे उनकी मुशाजरत इख्तिलाफ की बात हो या उनकी अमूमी बात हो, उस बारे में अपनी जबान को बंद रखे, इसलिए कि आपको हकीकत का ना तो इदराक है और ना आपके पास इतना इल्म है कि आप उस बात को समझने की सलाहियत रख सकें। लिहाजा किसी भी सहाबी के बारे में कोई राय कायम करने से पहले इंसान को अपनी हैसियत इल्मी को जांचना चाहिए, फिर किसी सहाबी के बारे में कोई गुफ्तगू करनी चाहिए। तो सहाबा इकराम के बारे में अहलुस सुन्नत वल जमात के अंदर भी ये बात समझ लीजिए कि वो तमाम तबक़ात और तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब दाखिल है जो कुरान और सुन्नत को किसी न किसी तरीके से मानते हैं, वो सब अहलुस सुन्नत वल जमात में दाखिल है। तो अहलुस सुन्नत वल जमात का जो तबका है, इनके ऊपर लाजिम है कि ये सहाबा इकराम पे तबर्रा की सूरत में दीन इस्लाम से बाहर हो जाते हैं और सहाबा इकराम के बारे में गलत राय रखने पर और गलत राय कहने पर भी ये दीन से बाहर हो जाते हैं। इस पर उम्मत का इत्तिफाक है। लिहाजा सहाबा इकराम के बारे में अपनी मर्जी से जिद और बहस करना और अपनी मर्जी से कोई गुफ्तगू करना वो मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? सूरह हशर आयत नंबर 8 अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। फरमाया, मोहताज मुहाजिरीन के लिए जो खास तौर पे निकाले गए अपने अपने घरों से और महरूम किए गए अपने मालों से और अल्लाह का फजल और रजा के खातिर सिर्फ वो लोग निकल गए, वो अल्लाह की मदद करने के लिए, उसके रसूल की मदद के लिए निकल खड़े हुए। आप इनके बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह कहता है कि ये सच्चे हैं। इनके घरों से इन लोगों ने अपने घरों में यानी मदीना में ईमान में इससे पहले ही इकरार पकड़ लिया और ईमान में जुड़ गए और ईमान से वाबस्ता हो गए। लिहाजा इनके ऊपर किसी किस्म की कोई राय करने से इज्तिनाब किया नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं
पसंद करता हूं इस बात को कि मैं ख्वाब में पाँव की बेड़ी देखूं, और मैं इस बात को इंतहाई नापसंद करता हूं कि मैं ख्वाब के अंदर गले की बेड़ी देखूं, गले में पहना हुआ तौक देखूं, मैं इससे अल्लाह की पनाह चाहता हूं, और मैं पाँव में पहनी हुई बेड़ियां देखूं, मैं इसको पसंद करता हूं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, बेड़ी तो बेड़ी है, ये बात क्यों है? फरमाया, इसलिए कि पाँव में पहनी हुई बेड़ी अगर ख्वाब में देखा जाए कि पाँव में एंकलेट्स लगे हैं, हथकड़ियों की तरह की चीजें पाँव में बांधी गई हैं, तो इसका मतलब है सिबात फिल इस्लाम, इस्लाम में साबित कदम रहना और इस्लाम में पुख्ता रहना, मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। और जो गले की बेड़ियां हैं, ये दीन से निकलने की एक सूरत है, लिहाजा मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, और मैं इससे अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा रहता हूँ कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानियों से किसी भी तरीके पे वो अमल ना करूं जिससे मैं दीन से बाहर हो जाऊं या मैं दीन से किनारे में हो जाऊं, मैं इस बात से इज्तिनाब करता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी के सहाबा के बारे में शान पे शान फरमा रहा है कि ये सिद्दीकीन है, ये राशिदून है, ये महदीयून है, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनाम किया। इसीलिए सूरह अनफाल आयत नंबर 74 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने ईमान भी किए, हिजरतें भी की, अल्लाह के रास्तों में जिहाद भी किए, वल्लज़ीना आबू व नसरू, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पनाहें भी दी और उनकी मदद भी की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अल्लाह कहता है ये सच्चे मोमिन हैं, ये सच्चे मोमिन हैं। इनके बारे में बातें करने वाले गैर मोमिन हैं, मगर ये पक्के सच्चे मोमिन हैं। लहुम मग़फ़िरतुन, अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत फरमा दी है, व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह ने इनके लिए मुअज़्ज़ज़ाना रिज़्क़ अता कर दिया है, क्योंकि इनकी कुर्बानियां और इनका जज्बा और इनकी स्पिरिट इतनी है कि ये कुरान और सुन्नह के ऊपर अपने आप को लगा के रखते हैं। लिहाजा हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत और सूरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसको कबूल करने की जरूरत है। और किसी भी सहाबी की अगर मुशाजिरत पता चल जाए तो सबसे पहले ये समझिए कि वो कौन है, वो इंसान है या गैर इंसान है। इंसान है तो इंसान के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, इंसान में जितने भी लोग हैं इन सबसे बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि इंसान वो खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, अब बेहतरीन तबके के लोग वो हैं जो खता करने के बाद फौरन अल्लाह से रुजू करते हैं। और हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में आपको तमाम में मुश्तरका बात मिलेगी कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह से रुजू करते हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह से मुआफिया मांगते हैं। लिहाजा उनका मुकाबला हमारे साथ या हमारे कौल के साथ मुमकिन नहीं है। तो अहलुस सुन्नत वल जमात का नजरिया समझिए, और किसी भी सहाबी के बारे में अगर कोई सोशल मीडिया से कोई बात पहुंच जाए तो उस पर यकीन करने के बजाय उसकी तहकीक कीजिए, उसकी खोज कीजिए। अगर वो सही हो तो उसके बारे में खामोशी कीजिए, और अगर वो सही ना हो तो उससे एहतराज कीजिए, उसकी मुखालिफत कीजिए, उसको कंडेम्ड कीजिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए और बताइए कि ये बात गलत है। और इस तरह हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हमारे सरों के ताज हैं, उनकी इज्जतों को पामाल करने की गुस्ताखियां की जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है सहाबा इकराम की शान और उनके मुकाम और उनकी हैसियतों के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किस तरह चुना है और किस तरह उनके लिए इंतखाब किया है। हजरत सहाबा इकराम की मेहनत से एक मस्जिद बनाई गई जो इब्ने बैदा ने बनाई थी। ये इब्ने बैदा कौन थे? एक औरत थी बेवा, उसका नाम था बैवा। अब ये उसका नाम है, ये उसकी भी अम्मा का नाम है। उसके दो बेटे थे, सहल और सुहेल। ये दोनों इब्ने बैदा कहलाते थे, अपनी अम्मा की तरफ मंसूब थे। जैसे मेरा नाम अपने अब्बा की तरफ है, तो अगर मेरा नाम अपनी अम्मा की तरफ कर दिया जाए तो शरई तौर पे ये जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसकी बेशुमार दलीलें हदीस में मिलती हैं। अब ये दोनों बैदा के बेटे थे। अब इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए और आपने जगह ढूंढना शुरू की तो इनके पास एक बाड़ा था, उसके साथ एक जगह थी जो टूटी फूटी का शिकार थी। वहां पे 2-3 खबरें बनी हुई थी, एक वीराना था और 1-2 दरख्त लगे हुए थे और खाली जगह थी। पैसे थे नहीं इनके पास कि ये उसको बनाते। जब मस्जिद ढूंढने की जाने लगी कि जी हमें मस्जिद बनानी है और जगह चाहिए, तो ये दोनों यतीम बच्चे अपनी अम्मा से इजाजत लेकर आ गए और इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये हम जमीन आपको मस्जिद के लिए देते हैं, आप यहाँ पे मस्जिद बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि
बहुत मिस्कीन लोग हैं, यतीम हैं, नादार बच्चे हैं, अम्मा भी बेवा है, खुद भी बच्चे यतीम हैं। कहा कि हम इसको खरीदेंगे। हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, हम इसके बदले में जन्नत का सौदा करेंगे। ये वो यतीम बच्चे थे, मिस्कीन बच्चे थे, इनके पास इसके अलावा कोई माल नहीं था, कुछ भी नहीं था इनके पास इसके अलावा। इन्होंने क़यामत के दिन का सौदा किया, आखिरत का सौदा किया। मस्जिद नबी की जमीन फी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जमीन कबूल की। मस्जिद नबी में जो सबसे पहला जनाजा मिंबर पे रख के पढ़ाया गया वो इसी सहल इब्न बैज़ा का था। अल्लाह के नबी ने सब जनाजे पढ़ाए कहाँ पर? ईदगाह में। लेकिन इब्न बैज़ा का जनाजा रसूलुल्लाह ने मिंबर पे रख के पढ़ाया, क्योंकि ये इसकी जगह थी, इनकी वो जगह थी जो इन्होंने अल्लाह के लिए वक़फ़ की थी। कुल माल दिया था, कुल माल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया कोई अल्लाह के रास्ते में अगर एक पेड़ देता है मैं उसे 70 पेड़ों की जमानत देता हूँ जन्नत में। इसने तो कुल जमीन दे दी थी, सबका सब दे दिया था। ऐसे ईमान वाले साहब, उनके बारे में कोई कैसे मुशाजरत कर सकता है, कैसे कोई बात कह सकता है? हम सोचते भी नहीं कि हमारी जबानों से किस तरह कलिमात निकल जाते हैं और हम कैसे कोई बात कह देते हैं। हजरत साहबा इकराम ने अपनी जानों का सौदा किया था, अपनी जानें अल्लाह के हवाले की थी। लिहाजा यहाँ बैठ के बातें बनाना बहुत आसान है, हमारी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता अल्लाह के लिए, वो अपनी सब कुछ कुल कायनात उठा के लाए थे। उन्होंने अल्लाह से सौदा किया जन्नत के एवज में। अल्लाह ने किसी कौम के लिए ये बात नहीं कही। आप तौरात देखें, ज़बूर देखें, इंजील देखें, सूफ़ मूसा देखें, सूफ़ इब्राहिम देखें, हमने बड़े खंगाला, बड़ा ढूंढा किसी कौम के बारे में ये मिल जाए कि अल्लाह कहे मैं इनसे राजी हुआ। अल्लाह ने किसी के लिए नहीं कहा। बनी इसराइल अल्लाह की लाडली कौम थी, अल्लाह ने उनके लिए नहीं कहा कि मैं इनसे राजी हो गया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। इन्होंने वो करके दिखाया है कि मैं इनसे राजी हूँ और ये मुझसे राजी हूँ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा। तो अल्लाह ने फरमाया जब एक मस्जिद ज़िरार बनाई गई, अब मस्जिद ज़िरार बनाई गई ये कहकर कि मस्जिद नबी हमें दूर पड़ती है, कहा ठीक है बना लो। लेकिन मकसूद क्या था कि हम वहां पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे, हम वहां बैठकर सहाबा इकराम के खिलाफ तबर्रा करेंगे, हम वहां बैठकर अल्लाह के नबी की जमीयत को और अल्लाह के नबी के मामलात को तोड़ने वाले बनेंगे। जब इन्होंने ये साजिश रची और इन्होंने ये अमल किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां पे हुक्म दिया, सूरत तौबा आयत नंबर 108, फरमाया ला तकुम फीही अबदा, ऐसी मस्जिद में आपने जाके खड़ा भी नहीं होना है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वादारी पे रखी जाती है, मिन अव्वली यौमिन, पहले ही दिन से, अहक्कु अन तक़ूम फीही, वो मस्जिद ज्यादा हकदार है अल्लाह के नबी कि आप वहां जाकर खड़े हों, वहां जाके क़याम करें। जो साजिश की बुनियाद पे मस्जिदें बनती हैं वहां जाके इबादत करना मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के लिए मस्जिदें बनाते हैं ये कौन है? ये वो है फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ये बात होती है अल्लाह हमें पाक कर दे, हम अल्लाह के यहाँ पाक साफ हो जाएं, हम गुनाहों से सुधर जाएं। माइज असलमी इतना जबरदस्त किस्म का आदमी था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हो गई। आपकी आदत मुबारक थी, बड़े रहीम थे, बड़े करीम थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रुख अनवर को दूसरी तरफ फेर दिया। ये फिर आया, कहा मुझे पाक कर दो, मुझे इस गुनाह के बोझ से अजाब करें जो मैंने गुनाह किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुंह मोड़ लिया कि शायद ये चला जाए। फिर ये आ गया, इसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दे, मुझसे गुनाह का बोझ सहा नहीं जाता, मुझे पाक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा जरा चेक करना ये नशे में तो नहीं है। वो आदमी सुनता है मुंह और कहता है अल्लाह के रसूल ये नशे में नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत में कह रहा है। माइज असलमी के पास लोग आए थे, उसकी कौम वाले, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ अल्लाह के नबी को बताओ अपने गुनाह का इर्तिकाब जो तुमने किया है उसका इकरार कर लो, अल्लाह से माफी तलब करो। दुनिया में सजा बहुत सख्त है, बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो सख्त तरीन सजा है उससे बच जाओगे। तो ये आया, ये मोटे कद का, दरमियाने साइज का, थोड़े छोटे कद का आदमी था और ये भारी बदन का था। सुनन अबी दाऊद में इनका तस्कीरा मौजूद है। ये आया और इसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई क्या हुआ, पूरी बात बता दी कि जी गुनाह का काम हो गया, पर मैं ले जाकर पाक करूं। अब जब इनको जाहिर है कि पत्थर पड़ने थे और मामला सख्त होना था,
जब मामला सख्त हुआ तो बशरी तकाजा है ना, इंसान है, इनकी जबान से कुछ कलिमात निकल गए और वो कलिमात ये थे, कहने लगे मुझे मेरी कौम ने मरवा दिया, मुझे तो कहा था गुनाह से पाक होंगे, ये इतनी शदीद तकलीफ में कैसे बर्दाश्त करूं, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये भागे। इनके पीछे पीछे सहाबा इकराम पत्थर लेकर भागे और इन्हें वादी हर्रा के अंदर जो है वो रजम कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली, अब रसूलुल्लाह की इखलास से भरी हुई नियत का आप इजहार देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भागने देते, भागने देते, भाग गया था ना, भागने देते, उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है ये तो देखो, उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं ये तो देखो, साहबी था, जाने देते, लेकिन तुम लोगों ने रजम किया। अल्लाह के नबी ने डांटा नहीं। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लु अखीकुम, अपने भाई का जनाजा पढ़िए। एक रिवायत में ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो तो जनाजा पढ़ते हैं, फिर उसका जनाजा भी पढ़ाया, उसके लिए दुआ भी की और कहा कि अल्लाह ने इसकी तौबा को बहुत जबरदस्त तरीके से कबूल कर लिया। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। इंसान था ना, बशरी तकाजा होता है, मसला होता है, जबान से लफ्ज निकल गया कि मेरी कौम वालों ने मुझे मरवा दिया। लोगों में से एक तबका ऐसा था, उन्होंने इसको फितना बनाया और कहा कि देखो तुम्हारे साहबा तो ये कहते हैं कि मेरी कौम ने मुझे मरवा दिया, वो अल्लाह के लिए थोड़ी मरा है, वो तो बस फंस गया तो मर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर मैं मदीना के 70 लोगों पर इसको तकसीम कर दूं तो ये उनके लिए भी किफायत कर जाएगी, बल्कि उससे भी ऊपर बढ़ जाएगी। इसने ऐसी तौबा की है। तुम इतनी सी बातों को लेकर बैठे। समझाने का मकसूद ये है कि भाई सहाबा इकराम इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। इंसान से बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे कलिमात निकल जाते हैं, तो उसकी हैसियत के हिसाब से उसको देखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की हैसियतें देखी, उनकी कुर्बानियां देखी, उनका घरों में आना जाना देखा, उनका इस्लाम के लिए अपना जिगर निकाल के पेश करना देखा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक उसूल दिया कि अंसार के छोटे छोटी बातें आया करें ना, मामूली मामूली, तो उससे दरगुजर कर दिया करो, उस पर बात नहीं बनाया करो। इनकी कुर्बानियां भी तो देखो किस कदर है। अब किसी इंसान है निकल जाती है, मुंह से बात हो जाती है, बशरी तकाजे हो जाते हैं, तो जरा दरगुजर किया करो, क्योंकि इनकी कुर्बानियां बहुत है, इस्लाम के साथ इनका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। लिहाजा अगर किसी इंसान से कोई कलिमा निकल गया तो उसको छोड़ दिया जाए, इसको माफ किया जाए और उससे दरगुजर किया जाए। जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फिदक का मामला कितना मिर्च मसाला लगा के बयान किया जाता है। अल्लाह के बंदो, ये बात समझ लो कि अबू बकर गाजिब नहीं थे, उमर गाजिब नहीं थे, उस्मान गाजिब नहीं थे। इन तीनों की दलील खुद जनाब अली उल मुर्तजा जाती तौर पर है कि अगर फिदक उनको चाहिए था तो जनाब अली अमीरुल मोमिनीन बने, तो क्यों फिदक नहीं लिया, क्यों अपने जिम्मे में नहीं लिया, क्यों उसके हाकिम नहीं बने। अबू बकर ने तो कहा था तुम्हें चाहिए, मैं अभी हाकिम बनाता हूं, लेकिन आपको बेचने का इख्तियार नहीं दूंगा, इसलिए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए वक्फ है। आप बेच नहीं सकते। आप मसूल बन जाए, आप अमीर बन जाए, आप निगरान बन जाए, आप बेहतरीन अहले बैत में हैं, आप इसके जिम्मेदार बन जाए, मगर बेचने की इजाजत नहीं। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, उनके पास मसला आया। जनाब उमर ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको निगरान बनना है, हम निगरान बनाने के लिए तैयार हैं, आपको इसका इख्तियार चाहिए, हम इख्तियार देने के लिए तैयार हैं, मगर आपको ऑनरशिप चाहिए तो ऑनरशिप तो भाई इस्लाम की है, मैं आपको ऑनरशिप तो नहीं दे सकता, खुद तो अपने पास नहीं दे सकता। जनाब उस्मान ने भी यही किया। जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये मुकदमा खुद उनकी बादशाहत के दरमियान, उनकी खिलाफत के दरमियान आया, तो जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये कहना कि वो इतने मसाइल में उलझे हुए थे, वो इस पे गौर व फिक्र ना कर सके, ऐसी कोई बात नहीं थी। तबकात में लिखा है जनाब अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरे बड़े अबू बकर, उमर, उस्मान, उन्होंने जिस तरीके पे इसको रखा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए इसे उसी हालत में रखता हूं। फिर आया हज्जाज इब्ने यूसुफ अल अदवी, इसने आके कहा कि ये सब जमीनें तो मेरी हैं, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इन सब पे मैं गजब करूंगा, ये सब मेरी मुमलिकत में होंगी। अब अहले बैत का दौर गुजर गया, अब मेरा दौर है। इसने सब पे कब्जा किया और सब पे इंजमात कर दिया और सारी हुकूमती तहवील में लेकर अपने जिम्मे में ले ली। इसके बाद अल्लाह ने भेजा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने कहा अल्लाह के बंदो, इतना बोझ उठाओ जिसका जवाबदही कर सको, हम इस काबिल हैं कि हम जवाबदही करेंगे। अहले बैत में से एक आदमी मुकर्रर हो जाए, वो इस जमीन का जिम्मेदार है, वो जाने अल्लाह जाने,
मैं वापस कर रहा हूं, मैं अल्लाह के यहाँ बरी उस्मा होना चाहता हूं, मैं उस जमीन और उस डिस्प्यूट के अंदर पड़ना नहीं चाहता जिस पे सहाबा इकराम के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई, क्योंकि मैं अल्लाह के सामने खड़े होने की खुदा की कसम है ताकत नहीं रखता कि अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। लिहाजा आप अपना बंदा लाएं, आप जिम्मेदारी ले लें। ये असल मसला फिदक का था, जिसको मिर्च मसाला लगा के कहा गाजिब हो गए, जनाजा रात को ले गए, शिकल देखने नहीं दी, सब बातिल बातें हैं। मैं आपको एक और नुक्ते की बात बताता हूं और अपने मौजू की तरफ दोबारा पलटता हूं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा, अबू बकर की अहलिया, जब फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विसाल के 6 महीने बाद फौत हो गई। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत तकरीबन 2 साल रही है। तो जनाब अबू बकर की खिलाफत में फातिमातुज़ ज़हरा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जनाब अबू बकर ने फातिमातुज़ ज़हरा की पहले दिन की बीमारी से जनाजे के दिन गुस्ल तक की सारी जिम्मेदारी किसके जिम्मे लगाई थी? अपनी अहलिया उम्मुल मोमिनीन आयशा की माँ के जिम्मे लगाई थी। उनके साथ रहती थी, उनकी खादिमा बन के रहती थी। हालांकि कौन थी? अपने दौर की खातून अव्वल थी, बादशाह अमीरुल मोमिनीन की बीवी थी, मगर खादिमा बन के किसकी थी? फातिमातुज़ ज़हरा की थी। अबू बकर कहते थे ये उस शख्सियत की बेटी है कि जिसके मुकाबले में तुम्हारी और मेरी अहलिया कोई हैसियत नहीं है। इसलिए फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज और बांदी रह के उसकी खिदमत किया करती थी। कौन? अबू बकर की अहलिया। और कहने वालों ने कितना झूठ कह दिया कि जी जनाब अबू बकर को जनाजे तक में बुलाने की इजाजत नहीं दी गई और कहा रात को ले जाना। ना तो रात को जनाजा हुआ, ना अबू बकर को महरूम किया गया। ये सब मनगढ़ंत और गैर मुनासिब बातें हैं। मुसलमानों को चाहिए इस तरह की बातों में मुब्तला ना हुआ करें, अपने बारे में इतना गलत नहीं सोचा करें और अपने असहाब के बारे में इतनी गलत राय ना रखा करें कि जिससे एक गलत फितना पैदा हो जाए। आपको चाहिए कि आप समझें, आपके सहाबा इकराम ने अपना जिगर निकाल के दिया है। वो फातिमा बतूल के जनाजे में नहीं जाएगा। वो आदमी जो एक एक टांग पे खड़े होके अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाला है, वो कैसे किसी के माल को गजब करेगा? ये बहुत सारी गलत बातें हैं जो गलत तरीके से तारीख की किताबों में लिखी गई हैं। नॉन अथेंटिक और नॉन एथेंटिसिटीज हैं, इनको लोगों में आम किया गया और लोग उसकी तरफ चल पड़े। लिहाजा अल्लाह की पनाह में आइए और याद रखिए फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू। जहां मस्जिदें बनती हैं तकवा की बुनियाद पर, वहां लोग अपनी पाकी तलब करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह पाकी को पसंद करने वाला है। लिहाजा सहाबा इकराम के बारे में नजरिया बद बिल्कुल ना रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा मुकाम रखिए, अच्छा किरदार जहनों में रखिए, उनकी कुर्बानियों पे उनके फोकस को दिमाग में रखिए, ताकि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ने जो उनकी फजीलतें दी हैं हम सब उसको समझने वाले और उनको मानने वाले बन जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल मुझे आपको हम सबको कमा कहूँ मुकम्मल शरिया पे मजबूत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अम्मा बाद,
मुख्तसर सी हम्द सलात के बाद सूरत तौबा आयत नंबर 100 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सबसे पहले ईमान और इस्लाम में सबकत करने वाले मुहाजिरीन और अंसार में से जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें चल रही हैं जन्नत में, इंशाअल्लाह वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो उन्होंने पाली है और बहुत बड़ा दर्जा है जो उन्होंने हासिल कर लिया है। लिहाजा अल्लाह खुद अपने नबी के सहाबा इकराम के बारे में कहता है कि ये मग़फ़ूरुल लहुम है, ये वो है जिनकी बख्शिश अल्लाह ने खुद कर दी है। लिहाजा उनके बशरी तकाज़ों पर आप कोई राय कायम करें या कोई सवाबदीद इख्तियार करें, ये मुनासिब अमल नहीं। इससे आपको और हमें चाहिए कि हम अपने आप को बचा के रखें और अपने आप को सही तरीके पे रखें, जैसा कि सूरतुल फतह आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। बेशक जो लोग हैं नबी आपसे बैत करने के लिए आए हैं ना, ये सहाबा, दर हकीकत वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं, अल्लाह की बात को कबूल कर रहे हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है, ये अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की बात मानने के लिए आ गए, लिहाजा इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ऊपर खुसूसी रहम फरमा रहा है। तो चाहे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो या अमीर मुआविया हो या दीगर हजरात सहाबा इकराम हो, इनकी बड़ी फजीलतें हैं, हम सब की फजीलतों के कायल हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, सहीहैन की रिवायत है, एक यहूदी ने अबू बकर को कहा कि तुम्हारे नबी की क्या हैसियत है, हमारा नबी मूसा बिन इमरान ऐसे था ऐसे था ऐसे था, अल्लाह ने उसको ऐसे ऐसे फजीलत दी थी। जनाब अबू बकर को बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा आया तो उन्होंने जो एक थप्पड़ मार दिया यहूदी को। यहूदी पहुंच गया सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि तुम्हारा साहबी मुझे मारता है, मुझे बदला चाहिए। और वहां भाई क्या हुआ है? अबू बकर ने कहा हद होती है कहने की, ये हर वक्त बोलता रहता है, अब कहता है कि मूसा बिन इमरान को फजीलत हासिल है आपके ऊपर, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने थप्पड़ मारा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदी से कहा भाई बदला ले लो, अबू बकर आ गया हो, थप्पड़ खाओ, मार भाई तू मार, अपना बदला ले ले। उसने एक थप्पड़ मारा, मामला खत्म हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को कहा मुझे किसी पर पढ़ाने की जरूरत नहीं। इस्लाम का दावा यह है कि जो अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है वो तमाम अंबिया को बिला तफरीक मानता है, कोई ज्यादा और कोई नीचा। अल्लाह ने जिसको फजीलत दी है वो अपनी जगह पे बहाल है। हम किसी में तफरीक नहीं करेंगे, किसी को आला किसी को कमतर नहीं मानेंगे, हम सबको बिनौअन अल्लाह का नबी जैसे मानने का हक है वैसे ही मानेंगे। ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सहाबा इकराम की हैसियतें रखी हैं, किसी को ऊपर और किसी को नीचे, वो अपनी जगह, मगर हम किसी में तफरीक नहीं करेंगे। जिनकी फजीलत मुकर्रर है उनकी फजीलत को मानेंगे, जिनकी फजीलत मुकर्रर नहीं है उन्हें हुक्म उमूम के तहत दिल से कबूल करेंगे, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं करेंगे। लिहाजा हजरात सहाबा इकराम के बारे में अच्छा गुमान रखना दीन का हैसियत है, दीन की कैफियत है और दीन का मुकाम और शर्फ है। इसके अंदर एहतियात बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। लोगों की बातों में, सोशल मीडिया में आने की और उनकी तहत हर बात सुनकर कबूल करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में जितना सच है उससे हजार गुना झूठ और गलत बातें फैलाई जाती हैं। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान बचे। हम सबको चाहिए हम अपने ईमान की हिफाजत करें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करें। जिंदगी रही और अल्लाह का हुक्म हुआ और मुझे कभी तौफीक हो गई और मौका अल्लाह ने दे दिया तो मैं जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मा सबत बिस्सुन्ना, जो कुरान और सुन्नत में दलाइल हैं और उनके मुताल्लिकात और मुहादरात हैं, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कभी उसको पर बात कर लेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल मुझे आपको हम सबको अपने ईमान में जो कमी हो गई है अल्लाह उसे सही करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब से राजी हो जाए। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। हमारे एक भाई है, नाम उनका लिखा है, उनके वालिद मोहतरम बहुत अलील हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उन्हें शिफा कामिल आजिला से बहारवर फरमाए। अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए और जिसके लिए दुआ की दरख्वास्त की है अल्लाह रब्बुल आलमीन सब अपनी रहमत से आफियत खैर और रहमत का मामला फरमाए। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। एक भाई कहते हैं
انہوں نے اپنی ایک کاروباری سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے ماں باپ کی کامل مغفرت فرما اور ہم سب کو نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرما. آخری نکتہ کہتا ہوں, یہ بات یاد رکھیے, اگر کوئی چیز عبادت میں ہے تو اس کے لیے نص ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے, قرآن میں اور حدیث میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. اگر اس کا ذکر قرآن اور حدیث کے علاوہ دنیا کی ہر کتاب میں ہے, وہ آپ کے لیے مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہے. لہذا کوئی بھی عمل کبھی بھی کرے, چیک کریں قرآن میں ہے حدیث میں ہے. اگر قرآن اور حدیث میں ہے تو فبہا, ورنہ دین کے معاملے میں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ عمل کیا جاتا ہے, ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو دین میں ایسا طریقہ نکالے گا ہم میں نہیں ہے, وہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. لہذا اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألک ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.